Others come join. We'll have a quick recap of whatever we know so far and then we go ahead. So far, we are aware of voltage denoted by the letter V given by work done per charge. That's actually 1 volt is equal to 1 joule over 1 coulomb. I write it because you should remember it. Then we come to current. Current is denoted by I given by Q over T. 1 ampere is said to be 1 coulomb by 1 second. This much we know. Voltage is measured by voltmeter. Okay, voltmeter, something which has high resistance, high R, and connected in parallel. This is measured by ammeter. An ammeter is someone which has very low resistance and always connected in series. This much we know. Last class, what did we study? Last class we studied what is resistance. Resistance is the obstruction given to the flow of current by a conductor. And we also studied what is Ohm's law. Ohm's law states that current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage provided temperature and other physical parameters remain constant. That means voltage is proportional to current. Voltage by current will always be a constant, and that constant is known as resistance. So resistance unit is ohm. 1 ohm is 1 volt over 1 ampere. The resistance offered by a conductor is said to be 1 ohm when a current of 1 ampere flows through it, when a voltage difference of 1 volt is maintained across it. So whatever we have studied, let's try to put that in a circuit diagram now and try and understand. Okay, basics. Now let's say the symbol for resistance is like this. This is the symbol of resistance, right? And let us connect it to a battery source, right? And we should also connect one ammeter so that we can find out what is the current out here. So this is an ammeter, and let's also connect a voltmeter out here. So we'll connect a voltmeter. It says that this will be equal to 1 ohm when the current is 1 ampere and this is showing 1 volt. ये Ohm's law है, ठीक है? The resistance is said to be 1 ohm when a current of 1 ampere is able to pass through it when the ends are maintained at a potential difference of 1, which means this is also 1 volt. Same ही तो चीज है ना, यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, बात एक ही है, ठीक है? अब एक सर्किट बना के देखते हैं कि how a voltmeter and an ammeter and everything should be connected. Let's make one small circuit which is almost like lighting up a torch bulb. So let's light up a torch bulb. So this is our torch bulb, right? This is our bulb. So we will try to put a key out here, right? We want to measure what is the current flowing through the circuit, and then we will be connecting it to a cell. Okay, so this is the key, and we would like to also see what is the potential we are maintaining out here. Put a voltmeter out here, right? So let's say let's say this is minus, this is plus, and this is the ammeter. This is how you connect. And every bulb, this is known as your load on the circuit, this bulb. The load is nothing but a resistance. हर एक load को आप एक resistance की तरह सोच सकते हैं. So this is how you connect an ammeter. Now since you know about ammeter and voltmeter, so you can connect the ammeter, voltmeter out here. Voltmeter will tell you what is the voltage in the circuit. Ammeter will tell you what is the current flowing in the circuit. Can I rub this and we go a little bit more ahead today? Okay, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? फाइन, ऑल ऑफ यू जॉइंड. चलो आगे बढ़ते हैं और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट रेजिस्टेंस वंस अगेन. Mathematics at its side, let's try to understand. Resistance is an obstruction. This is an obstruction to the flow of electrons. Flow of electrons. In other sense, we can say obstruction to the flow of current. ये समझ में आया आपको? ठीक है? तो let's take a conductor. ऐसे एक hypothetical scenario देखते हैं. This is our conductor. And through this conductor, who wants to go through? Current wants to go through. Current जाना चाहता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस अपने रास्ते को चोक कर देगा.
ये चोक कर देता है, ऐसे चोक कर दिया तो करंट जा नहीं पाता है आराम से. दिस इज व्हाट इज रेजिस्टेंस. ठीक है, दिस इज हाइपोथेटिकल impression just to make you understand. Resistance इसको choke कर देता है, and once you choke it, the current is unable to flow through here. ठीक है, the current is unable. Children, can you keep your cameras on, Naren and Darshika? Okay, so the current is unable to flow through it. Now, if you want the current to flow through it, आप फिर भी जाना चाहते हैं, so what you should do? You should jack up the voltage. Voltage को बढ़ाओ. That's why we say current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference that is maintained at the end. Naren, can you just switch on your camera to the potential that is maintained across the ends of the camera? Better keep your camera on. I mean, more that you understand, for me it is more disturbing if the camera gets switched off. So the voltage that you maintain across the ends of the conductor will determine how much of current is going in. Now, let us try and look at certain topics now. Conductors. Conductor. What is a conductor? Conductor is somebody who conducts electricity. That means for a conductor, the value of resistance should be very less. That's why it's a conductor, right? And this is very less means I would like to call it as a good conductor. If you are a bad conductor, then I would say that your resistance is somewhat high. Your resistance is somewhat high. You still conduct. It's something like this. You still allow the current to go, पर थोड़ा मेहनत करके जाने देते हो. So you are a bad conductor. And if you do not conduct at all, I call you an insulator. Right? For an insulator, your resistance should be almost infinity. एकदम बहुत ज़्यादा होना चाहिए. Insulator का मतलब कैसा है कि आपने पूरा चोक कर दिया है. जितना इच्छा वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट पास ही नहीं करेगा. That's an insulator. ठीक है, पहले हम पढ़ते थे ना, insulators do not allow current to pass through them. Why? Because their resistance is very high. Their resistance is very, very high. Conductors, their bad conductors means they have resistance, but still you will be able to pass. And good conductors का मतलब है resistance बहुत ही कम होता है. और यहाँ आ जाता है कौन? यहाँ आता है सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस काफी कम होती है. और अगर आप जानना चाहें तो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी. सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमिनन एट विच देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स whose resistance becomes almost zero at extreme low temperatures. Extreme low temperature. Now this is a research topic. बहुत ही ठंडे टेम्परेचर में some elements can show you with their resistance almost becoming zero. That is called superconductivity. And if superconductivity can be achieved, your entire desktop's motherboard can be brought into this much. Because you don't need, there is current passes to the way you want. ये समझ में आया? यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल. अगर चैप्टर को तो हम पढ़ेंगे ही, तो the three parameters of this chapter have been introduced to you. You now know voltage, you now know what is current, and you also know what is resistance. Now some talks. Okay, simple सी बातें. चलो ये आगे करेंगे, अभी करने से हम लोग ड्रिफ्ट हो जाएंगे. अब एक और बात आता है. Say suppose I want to design a circuit and I want to pick a wire. Now what are the wires available in market? I have got copper wire, I can have aluminum wire, I can have Scandinavian wire, I can have titanium wire, I can have silver wire. Now question arises, what material should I pick up to be my wire? ठीक है, तो इसके लिए समझते हैं, थोड़ा सा बायोलॉजी जानना जरूरी है उसके लिए. This is a single cell of a human body. Let's understand this is a single cell of a human body, right? And इसके अंदर एक पैरामीटर भरा हुआ है which is known as stubbornness. ठीक है, समझ में आ गया? एक सिंगल सेल है, इसके अंदर एक भरा हुआ है stubbornness भरा हुआ है. और मान लो इसका stubbornness का एंटिटी है 5 यूनिट्स भरा हुआ है इसमें. This is one cell of a human body जिसमें जिद, stubborn मतलब जानते हो ना, जिद्दी, 5 यूनिट्स जिद भरा हुआ है. ऐसा ही एक और सेल है, मान लीजिए लैब में, इसमें stubbornness है 3 यूनिट. हमने इन दोनों सेल्स को कल्चर किया करके हमने एक 30 kg का लौंडा बनाया दोनों में से. ठीक है ना, 30 kg बॉय. इसको इस सेल से बनाए, इसको इस सेल से. कौन सा लड़का बड़ा होकर जिद्दी बनेगा?
ये वाला बनेगा ना। क्यों बनेगा ये ज्यादा जिद्दी? और बेटर लैंग्वेज में बोलो, ये जानवी, डिड यू अंडरस्टैंड? ये ज्यादा जिद्दी बनेगा बड़ा होके। ये जिद्दी क्यों बनेगा? जो ह्यूमन टिश्यू है, गेट मी द राइट वर्ड। इसका पैदाइशी जिद्दीपना इससे ज्यादा है, जिससे ये जन्म ले रहा है ना, बेस एंटिटी ज्यादा है इसका। समझ में आ रहा है? सो मान लो अब इस टॉपिक को थोड़ा सा एनालॉगस करते हैं। यहां पे एक वायर लेते हैं कुछ एक लेंथ का, लेट्स से वी नो द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर इज ए एंड द लेंथ इज एल। एक क्रॉस सेक्शन ए लिया और एल लिया, और ये मान लो एक एलिमेंट ई का है, E1 का है। उतना ही एक वायर लिया, सेम क्रॉस सेक्शन ए और सेम क्रॉस सेक्शन सेम लेंथ एल, दिस इज एन एलिमेंट E2। ठीक है, हमें क्या बनाना है? हमें ईयरफोन्स बनाने हैं, ईयरफोन का वायर बनाना है। हमारे पास चॉइस है, E1 एलिमेंट लो या फिर E2 लो। तो हम कौन सा लेना चाहेंगे? वो वायर जो करंट को अच्छी तरह आने दे। अगर करंट को रोक देगा तो सिग्नल्स अच्छे से नहीं आएंगे हमारे ईयर्स में, वी वोंट हैव इट प्रॉपर्ली। आवर क्वेश्चन कम्स, ओके, टुमारो इफ यू वांट टू हायर एन एम्प्लॉय आउट ऑफ दीज टू, only going by the zid factor, we want to hire a obedient person, we want a person who will be obedient to us. Whom will you hire? You will hire this guy, right? Because you know case kya. Now the same question comes here. If you want to pick up one element, which element will you pick up? How do you? इसमें तो जैसे बोल दिया ना, इसका zid 3 था, वो लेस वाला डिसीजन कहां से लोगे? वो लेस वाला कहां से? आप स्टोरी को समझ नहीं रहे हैं। इसके अंदर जो जिद पैदा हो रहा है ना, देयर इज सम प्रॉपर्टी विच इज इनहेरेंट इन हिज डीएनए। ट्राई टू मैप द स्टोरी दैट आई ट्राई टू टेल यू। देयर शुड बी सम प्रॉपर्टी विच इज इनहेरेंट टू एवरी एलिमेंट। If you gauge that property, you should be able to say, should I pick that element or should I not pick that element? हाँ, so we are trying to study that property. I could have easily written a story out here saying that resistivity, ये आपका स्कूल करेगा, आपको definition लिखा देगा, पर resistivity क्या है बच्चे समझ नहीं पाते हैं। Resistivity means we are going to study some property, this property, the inherent stubbornness, right when you were born, आपके DNA में जो कोडिंग हो गया है ना, वही आगे रहेगा। और आगे मान लो this boy becomes a sumo wrestler, so he will still be a humble sumo wrestler, but this one will be a very stubborn sumo wrestler. Do you get it? With this idea, let us try to understand what is resistivity. Now say suppose I pick up two elements and I want to make wires out of them. Every element has a different resistance, so there should be some parameter which is unique to an element. We say इस एलिमेंट का ये पैरामीटर पैदाइशी ज्यादा है, इसका ये पैदाइशी कम है। आपको समझ में आ रहा है? उसी चीज को अभी पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी को माइंड में रखते हुए। ठीक है, आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स से वी पिक अप अ कंडक्टर whose length is L, right? L is the length of the conductor, and the cross sectional area, do you know what is cross sectional area? Now since this is a cylinder, the cross sectional area would be a circle. If this would have been a cuboidal, the cross sectional area would have been a square, right? So I'm saying this is a simple wire rod and the cross sectional area is a circle, and I say this is A. Now there are some things which you should understand. The resistance of a conductor is directly proportional to the length. जितना लंबा लंबा वायर आप लोगे उतना ही सिग्नल ड्रॉप करेगा। Do you know that? जैसे आपने हेडफोन लगाया, कहा सर मैं 19th फ्लोर में हेडफोन लगाऊंगा और ग्राउंड फ्लोर में मैं अपने आईपॉड को सुनूंगा, सिग्नल ड्रॉप कर जाएगा। बिकॉज योर लेंथ इज इंक्रीजिंग, द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जितना लंबा होगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कम आएगा, करंट नहीं आएगा ना। आवाज, सी वी इन इलेक्ट्रॉनिक्स डोंट अंडरस्टैंड आवाज, वी जस्ट अंडरस्टैंड करंट इज कमिंग और नॉट। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अ करंट। If the current is more, the आवाज is more. If the current is less, there, तो current does not come. आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, आपने लंबा लंबा लेंथ ले लिया है, तो लेंथ हमें छोटा। Why doesn't the earphone come? Why does the earphone come with a standard length? There is some reason to it ना, इतना बड़ा बड़ा क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है, ऐसे भी से सपोज ऐसे ही ट्यूबलाइट्स को अगर आप मेरे घर में पॉइंट लगा के इसको ट्यूबलाइट को हैदराबाद से चेन्नई में लेके जलाओगे ना, वायर लेके, ये नहीं ग्लो करेगा,
फॉल्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। सेकेंड रिलेशन वी हैव इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब है इन दोनों से क्या पता चला, लेंथ अगर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ अगर घटेगा रेजिस्टेंस भी घटेगा। हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट वन? द सेकंड वन टेल्स यू क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कोई रोबोट हाई एंड इंजीनियरिंग नहीं बता रहा हूं, सिंपल सा टॉपिक। हैव यू सीन माइक्रोवेव, गीजर, एसी, इनका प्लग पॉइंट्स देखा है? कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं ना, 16 एम्पियर बोलते हैं। इनमें हमें ज्यादा करंट चाहिए, वी वांट मोर करंट। अ माइक्रोवेव वांट्स मोर करंट, अ फ्रिज वांट्स मोर करंट। मोर करंट करना है तो रेजिस्टेंस क्या करना है? कम करना है, इसलिए एरिया बढ़ा गया। सिंपल, समझ में आया? एरिया बड़ा करेंगे तो रेजिस्टेंस गिरेगा। ये जो बड़ा वाला हमारे घर में होता है ना, ये 16 एम्पियर का सॉकेट होता है, और जो छोटा वाला होता है वो 5 एम्पियर का होता है। हमें ज्यादा करंट चाहिए तो हमें रेजिस्टेंस को डाउन करना होगा ना। कैसे डाउन करें? मोटा करो, ये मोटा किया, इसको एरिया बड़ा करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे भी सोचो ना, इसमें इतना हाई एंड क्या है, अगर ये एरिया को मैं बड़ा कर दूंगा तो और ज्यादा करंट लोग भाग पाएगा ना, और जगह होगी, रेजिस्टेंस उतर गया। रेजिस्टेंस मींस व्हाट? चोकिंग, चोकिंग। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ आटा डो? आटा डो देखा है? बहुत बढ़िया बात। नाउ टेक द आटा डो एंड यू ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ। आटा डो का एरिया क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और मान लो उसके अंदर से एक चूहा जा रहा है, वो चूहा जा पाएगा? नहीं ना। तो हमने अगर आटा डो का लेंथ बढ़ा दिया तो आटा डो का रेजिस्टेंस बढ़ गया, चूहा नहीं जा पा रहा है। और आटा डो को अगर मोटा कर देंगे तो चूहा शौक से जाएगा, टन टन करके। समझ में आया? क्लियर? सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ में आया इतना? आओ इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए को भी ले आया, एल भी ले आया, ठीक है ना, लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमको ना ये चीज अच्छा नहीं लगता, मेरे को पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस प्रोपोर्शनैलिटी। सो मैं क्या करता हूं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू एल अपॉन ए। बच्चा ये समझ में आया? बोलो। और यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक नया नाम देता हूं और यहां पे एक ग्रीक लेटर रो लिख देता हूं। क्या लिख दिया? रो। हाउ डू यू राइट रो? ऐसा करके ऐसा करने का। ये एफ दिख रहा है भैया? मुझे तो एफ नहीं, मुझे पी जैसा दिख रहा है। आप लिखना सीख लो कैसे लिखते हैं, ऐसा करके ऐसा। हाँ, डेंसिटी अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं ना। तुम वाक्य बनाओ में हर जगह मोहन और राम ही लिखते हो ना स्कूल में, क्योंकि उसका स्पेलिंग इजी है, तो इसने भी रो को यूज किया, खत्म बात। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी किया मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आइए, सबसे पहले हमने क्या बोला, ये आपको बहुत ट्रू और फॉल्स में काम आएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, resistance is inversely proportional to area. If you forget this, think of the atta dough. If you pull the atta dough, then the cross sectional area reduces. As simple as that. Okay, if you combine these two statements, you say resistance is directly proportional to L upon A, and further combining I say resistance is equal to rho L upon A. Have you understood this? Yes, right, now let us see some interesting thing. हाँ बिल्कुल कॉपी, थोड़ा रुक जाइए फिर कॉपी कीजिए, मैं रुक जाऊंगा, मुझे भी पानी पीना है। आई विल ड्रिंक वाटर, यू विल कॉपी। नाउ लेट्स से, ये से बोल दिया मैंने, हाँ से, इस लेंथ को आप 1 मीटर करो, 1 मीटर, और इस एरिया को आप 1 मीटर स्क्वायर करो। क्या दोनों कट जा सकता है? आपका डेफिनेशन अभी कैसा हो गया देखो तो, R इज इक्वल टू रो एंड यू विल हैव 1 मीटर्स रो, और आई कैन राइट ऐसे लिखें, रो इज इक्वल टू आर, आर में क्या है, ओम है, और यहां नीचे क्या है, यहां पे 1 अपॉन मीटर है ना। क्लियर है? दिस इज द यूनिट ऑफ आर एंड दिस साइड यू हैव अ मीटर, बिकॉज मीटर ने मीटर स्क्वायर को काटा। सो कैन आई राइट दिस थिंग एज, मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, रो इज इक्वल टू आर ओम मीटर, ये लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मीटर वीटर भूल जाइए,
थोड़ी देर के लिए भूल जाइए. Just concentrate upon this thing that you came to a scenario where you said R is equal to rho. ऐसे सिनेरियो पे आप आ गए थे, आए थे. इसको आने के लिए आपने क्या किया था? लेंथ को यूनिटी माना था, 1 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, व्हाटएवर यू फील लाइक, और एरिया को स्क्वायर यूनिटी माना था. तो कैन वी डिफाइन व्हाट इज रेजिस्टिविटी? Resistivity is the resistance of that conductor which has unit length and unit cross sectional area. रेजिस्टिविटी को भी तो डिफाइन करना होगा ना. तभी जैसे मैंने एक बच्चे का सेल दिखा दिया था 5, 3, वो कैसे डिफाइन करोगे आप? तो आप कपड़े की दुकान में जाओ एंड गेट अ 1 मीटर स्टिक, दैट इज 1 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मीटर स्क्वायर करो. यो बम्बू सा एक क्रिकेट के रोलर जैसा एक बनेगा कंडक्टर, उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज द रेजिस्टिविटी. नाउ क्वेश्चन कम्स, कल अगर हमें कोई मटेरियल पिक करना है, हम किसके बेसिस पे पिक करेंगे? रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज अ यूनिक वैल्यू, इट विल नॉट चेंज with length and area. Why? Because you arrived at that value when you took this as unity and this is, you have to have some standard na. What is $1 in Indian rupees? $1 does not fluctuate, but I can, on the basis of that, I can say what is $500, $200. So you need to have one base. The base is resistivity. Do you get it? Now say for example, what did you get the unit of resistivity? So many ohms meter, right? It means, say suppose I have got 2 elements out here, इसकी रेजिस्टिविटी है 5 ओम मीटर और इसकी रेजिस्टिविटी है 4 ओम मीटर. अब आप पे चॉइस है, आप कौन सा पिक करोगे. अगर आपको बहुत लंबे लंबे वायर बनाना है, आई विल से इसको पिक करो. ये हर मीटर में 4 ओम का रेजिस्टेंस पैदा करेगा, ये हर मीटर पे 5 ओम का रेजिस्टेंस पैदा करेगा. ये इसकी पैदाइशी है. इससे आप रॉड बनाओ, सलिया बनाओ, जो बनाओ, ये पैदाइशी 5 ओम लेके आता है. नाउ यू विल से, तो सर कोई भी इडियट इसी से बनाएगा. नो, कॉस्ट इज ऑल्सो एन इश्यू. सिल्वर का तो इससे भी कम होगा, उससे भी कम होगा, लेकिन सिल्वर महंगा बहुत ज्यादा हो जाता है. हम इतने, एज एन इंडियन बायर आप दुकान में जाके क्या होता है, भैया सस्ता कोई है क्या? हाँ सर ये मिल जाएगा, इसमें सस्ता वाला ले लो. So how do you decide a material to pick up to make a wire or a conductor? It's not resistance. Resistance will depend upon what shape you picked up, what length you picked up. Do you get it? The example is something like this. Do you know the brands of atta that we get in market? Ashirwad and also there is one atta called Sharbati atta. Sharbati atta is a premium atta. वो आटा पैदाइशी प्रीमियम है. उससे पराठे बनाओ टेस्टी बनेगा, पूरी बनाओ टेस्टी बनेगा, कुछ भी बना लो, लाछा पराठा बनाओ टेस्टी बनेगा. सो यू पिक्ड इट अप वेयर, बिकॉज वो शरबती आटा बेसिकली अच्छा आटा है. आप 1 ग्राम लो, 2 ग्राम लो, जो भी, समझ में आ रहा है? उसके समोसे भी अच्छे बनेंगे. So when you decide a material, so our question comes is, what is the implication of resistivity? Sir, resistivity is a measurement which helps me decide, should I pick this material for my conductor job or not? Because no conductor is going to give me zero resistance. Every conductor will have resistance. Then I would see 2 things, my technical requirement and my financial capability, right? Both I have to see. My technical requirement says that I want the best conductor, so the resistivity should be less. वो बच्चा लेके आओ जिसका जिद एकदम नहीं है, ये सबसे ओबीडियंट. पर सर ये बच्चा बहुत महंगा है, ये बच्चा आप नहीं ले सकते हो. हाँ, तो एक काम करो, वो थोड़ा सा जिद्दी वाला बच्चा ले आओ, 2-3 तमाचे मार के काम करवा लेंगे उससे, वोल्टेज बढ़ा देंगे. वही तो बात है ना. जो आप लेके आते हो, आपका पास पैसा नहीं है, सो यू बाई समथिंग विच हैज मोर रेजिस्टिविटी. तो आप क्या करोगे? वोल्टेज बढ़ाओगे. फिर भी कर सकते हैं ना, चला लेंगे. टीवी देखो, वही टीवी में वही प्रोग्राम आता है. कोई 4K में देखता है, कोई SD में देखता है, कोई HD. Resistivity is the base parameter. Now the question comes, sir, how does it differ from resistance? Well, resistivity is the atta and resistance is what do you want to make out of it. Lacha paratha, it will have resistance.
Naan, it will have resistance. Roti, it will have resistance. Gujia, it will have resistance. Resistance depends upon shape, length, and cross-sectional area. Do you get it? Yes. Length and cross-sectional area. But the material that you picked up, that is irrelevant of this. That is called resistivity. अब आपको थोड़े से डेटा देता हूं बुक से. ओके, जैसे मैंने 3 और 4 लिखा ना, लेट्स सी सम डेटा, तो आपको और मजा आ जाएगा. ठीक है, एक डेटा देखते हैं तो हमें मजा आ जाएगा. ये देखो, कुछ रेजिस्टिविटी के डेटा दे रहा हूं आपको. आप खुद ही बोल पाओगे दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहां पे लिखता हूं सम डेटाज. फॉर एग्जांपल, सिल्वर मींस द बेस्ट कंडक्टर. सो इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एकदम बहुत कम होना चाहिए. बहुत अच्छा बच्चा है भाई साहब, इसको ले जाइए. पेट डॉग खरीदना जैसा हो रहा है. बहुत ही फ्लफी है, हस्की है. बिल्डिंग में घूमेंगे तो सारे लोग आपको देखेंगे, सेल्फी लेना चाहेंगे, इंस्टा रील बनाएंगे आपके. भैया बताइए इस हस्की का दाम कितना है? सर हस्की की वैल्यू है 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर. कितना कम है देखो, हर मीटर में इतना देता है. ठीक है, समझ में आया? अब एक जिद्दी सा एक पप दिखाएंगे आपको. ये कौन है? सर ये इंडियन वाला पप है. ऐसा है ना कि पूछो मत, बड़ा ही जिद्दी है. रबर ले लेते हैं. रबर यू नो, रबर के सैंडल्स. रबर के सैंडल पहनने से क्या हमारे बॉडी में करंट आएगा? नहीं आएगा. इसका मतलब रबर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी. जरा उसका डेटा देखते हैं. रबर की रेजिस्टिविटी है 10 टू द पावर 13 टू 10 टू द पावर 14 ओम मीटर. अब तुम्हें समझ में आ रहा है? So high is the resistivity value. That means tomorrow if you want to make a conductor, you will be an idiot if you choose this item. So rubber, how much rubber is that? No, it's not about how much rubber. Rubber as a material, if you take rubber and you try to make something like this, 1 meter square and 1 meter, सब कुछ is 1 meter square 1 meter. वो जो क्रिकेट का रोलर है ना, वैसा समझ लो. वैसा रबर ले लिया तो इतना रेजिस्टेंस देगा. मतलब उसके पीछे आप तकिया लेके सो सकते हैं. उस 10,000 वोल्ट भी देगा तो कुछ नहीं होगा. और अगर सिल्वर हुआ, छूते ही रोलर एंड यू बोथ विल गो अवे. समझ में आया व्हाट इज रेजिस्टिविटी? सो रेजिस्टिविटी इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी. रेजिस्टेंस पैदा होता है आकार देख के. व्हाट इज द फिगर यू आर गिविंग इट? आर यू मेकिंग अ रॉड? आर यू मेकिंग अ थिन रॉड? आर यू मेकिंग अ मोटा रॉड? बेस्ड ऑन दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. सॉरी, लेट्स सी वन मोर थिंग, तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा. लेट्स टेक, अच्छा कोई बात नहीं, एक बार और लिख देंगे आपके लिए, टेंशन ना लो. ठीक है ना, हम अपने आप लिखेंगे. एक चीज और देख लो, इसके बाद लिखेंगे, डोंट वरी. तो हम हैं मिडिल क्लास आदमी. वी आर मिडिल क्लास. मिडिल क्लास आदमी क्या खोजता है लाइफ में? एसएसटी. एसएसटी का मतलब समझ में आता है? सरल, सस्ता, टिकाऊ. हमें सिंपल चाहिए, सस्ता चाहिए और लास्टिंग करने में टिकाऊ चाहिए. तो हमारे लिए कौन सा वायर आता है बेटा? कॉपर का वायर आता है. ठीक है, तो कॉपर की वैल्यू देख लेते हैं. कॉपर इज 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8. 1.69, हाँ अच्छा है ना, 10 टू द पावर -8 ओम मीटर. तो ये अपने को चलता है. हाँ ये 69, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली इट इज गुड एंड इट इज चीपरली अवेलेबल. ठीक है, तो हमने कॉपर लाया बेटा. दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर. ठीक है, नाउ यू टेक आउट वन स्ट्रैंड ऑफ कॉपर लाइक योर हेयर. आपके बालों जैसा एक स्ट्रैंड निकाल लीजिए. समझ में आया? तो इसमें आपको कैसा लग रहा है? दिस इज वेरी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. ये कितना रेजिस्टेंस देगा? ताबड़तोड़ रेजिस्टेंस देगा. बिकॉज यू नो द फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितना लंबा लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. हमने छोटा किया, यहां से करंट जा पाएगा? नहीं जा पाएगा. ठीक है ना. अब आप देखो, यू गो एंड सी गीजर्स, यू गो एंड सी एसी. इनके वायर्स देखो क्या मोटा मोटा होता है, मोटा मोटा होता है. तो मान लो ये वायर हमने बाजार में खरीदा. ठीक है, ये वायर है हमारा 0.5 स्क्वायर mm, मतलब 0.5 mm square is the radius. ठीक है. Now since say suppose these wirings which we do for UPS and all, हम लोग मार्केट में जाके बोलते हैं 2 स्क्वायर mm का. जैसे एसी का वायरिंग हम करते हैं तो 2 स्क्वायर mm. कितना मोटा हो जाएगा वो वायर? समझ में आ रहा है? सो इट्स द सेम कॉपर. अब वो वायर कैसा हो गया? बहुत सारे वायर्स हमने इसमें लपेट दिया, ऐसे 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 करके, लॉट ऑफ स्ट्रैंड्स.
और फिर इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का हमने स्लीव डाल दिया। ऐसे ही तो वायर आता है बाजार में। तो ये मोटा हो गया, मोटा होते ही क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, रेजिस्टेंस घट गया। अब यहां से बहुत करंट जा सकता है। एक और वे ऐसे भी सोच देखो, एक से जा नहीं पा रहा था, एक और रास्ता दे दिया, बस जा रहा है। Have you understood now what is resistance and resistivity? You picked copper only, which whose पैदाइशी resistivity will always, अगर आप पूछोगे सर यहाँ resistivity कितना है, हम बोलेंगे मूर्ख हो, यहाँ भी 1.69 ही है, यहाँ भी 1.69। तो चेंज क्या हुआ सर, यहाँ रेजिस्टेंस R डैश है, यहाँ रेजिस्टेंस R है, जहां R is greater than R डैश। ये समझ में आया? You can change resistance depending on the type of geometry that you selected. You cannot change this. अब हमारे पास दो जिद्दी बच्चा आया था ना, उसका सेल में कितना था, 5 था। हमने उस बच्चे को जब अडॉप्ट किया, वो बच्चा ऐसा मोटू सा बच्चा था, तो उसको हम ओबीडियंट कैसे बनाए, हम उसको जिम में ले गए और खूब एक्सरसाइज करवा के लड़के को पतला कर दिया। तो उसके बॉडी में से जिद्दी सेल्स कम हो गए ना थोड़े से, तो उसको थोड़ा ओबीडियंट। लेकिन हम उसके पैदाइशी जिद को चेंज नहीं कर सकते, उसका डीएनए में ही है 5। और मान लो हमारे पास एक ऐसा बच्चा आया जो इतना ओबीडियंट है कि हम गुस्सा आ गया, इज टू ओबीडियंट, तो हम उसको रोज ऐसे वे प्रोटीन खिला रहे हैं, काजू खिला रहे हैं, बेटा तू मोटा होता जा, तो कम से कम जिद बढ़ेगा, तो जिद बढ़ेगा उसका। If you still need more explanation, I'm there. If you want to write, you can write. So how do you bring this? R is equal to some constant L upon A. This is known as rho, and you make L is equal to 1 unit, and A you take as a 1 unit square. 1 unit square, then R becomes equals to rho. And the unit that you will be having is ohm, इस तरफ रह जाएगा और इस तरफ मीटर रह जाएगा, सॉरी इस तरफ नीचे मीटर रह जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है हमेशा ओम मीटर। हर मीटर पे कितना रेजिस्टेंस देगा, हाँ, रो इज रेजिस्टिविटी। सो वी से रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। ठीक है, सो सर what should I assume? I would say take 1 centimeter length and 1 centimeter square. That becomes more easy. 1 मीटर लोगे तो ये क्रिकेट के रोलर जैसा होगा, समझ में आ रहा है ना? 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ, काफी बड़ा हो जाएगा। उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, रो। And if we have to pick up a material where money is not an issue, but we want very good conductors, please go and pick up materials which are made up of elements with as low resistivity as possible. Money is not an issue. Money is and if you are said that please go and pick up a insulator, screwdriver का हैंडल बनाना है, किससे बनाओगे? तो वो वाला रो लो जिसका ज्यादा, रबर हो गया, ग्लास हो गया, हाँ प्लास्टिक। हम रबर तो नहीं लेते, रबर में पेच घुसे हैं ना, प्लास्टिक ये इसमें है ना, डायमंड, पेपर, ग्लास, एबोनाइट, या चप्पल पहन के अगर काम करते हैं, हमको अगर फॉर एग्जांपल शॉक लगे तो हमको शॉक फील होगा बॉडी में? It depends upon how much moisture content is there. चलो इसको कॉपी करो, बता देता हूँ। How many of you have seen a tester screwdriver? You have seen a tester. Do you know what is a tester? A tester is a screwdriver which has got a light inbuilt in it. Tester देखा कि नहीं? नहीं, ऐसे वो नहीं देखा। क्या नहीं देखा? तेरे डैड के पास कितने हैं? टेस्टर स्क्रूड्राइवर नहीं देखा है? हाँ, मेरे पास यहाँ है कि नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ इस घर में भी एक रखता हूँ, है ना, रहेगा। आप लिखो इसको, मैं तब तक ले आता हूँ, रहेगा। इस फ्लैट में भी है एक। यो है, इज देयर। चलो इसको लिख लो, फिर थोड़ी सी चीजें देखते हैं, तभी ना समझ में आएगा। नहीं तो तोता बन के पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा। हाँ नहीं, m टू द पावर -1 नहीं, m उधर चला जाता है। हाँ हाँ ठीक।
ये अंदर है। हाँ, ये देख ना, ये इसमें घुसा दिया, दिख रहा है, दिख रहा है, जल रहा है। नाउ आई एम वेयरिंग सैंडल्स ना, जैसे ही नीचे पाँव रखूंगा ये और ज़्यादा ग्लो करेगा। देखो सैंडल में रखने से क्या, लाइट क्या करेगा? it will tell me whether I am getting supply or not. Now don't touch that. Do you see the light? And if I take off my sandal, it will glow. So बताते हैं, अभी समझाते हैं, रुको। ये सब घर में करना मत, हाँ, हाई वोल्टेज है, लीथल है। चलो, तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये मिटाऊं भी, थोड़ा रेजिस्टेंस का केस समझते हैं कैसा होता है, देखो। ओके, सो चिल्ड्रन, whatever you see here, just for your understanding, in your house you have got a 3-pin plug which looks like this. This is known as the earth. हम safety में इसको पढ़ेंगे फिर से। This is known as your live and this is known as your neutral. ये live वाला जो है ना, इसी में हमको वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। This is the hot pin. इसमें वोल्टेज आ रहा है कितना, 220 वोल्ट्स आ रहा है अगर आप इंडिया में हैं तो हाउ डू वी नो वेदर वी आर गेटिंग वोल्टेज आउट हियर? हमें एक डिवाइस मिलता है, ये इसको हम कहते हैं टेस्टर स्क्रू ड्राइवर। ओके, लेट मी ब्रिंग इट नियर टू द कैमरा सो दे विल अंडरस्टैंड। सो दिस इज कॉल्ड अ टेस्टर स्क्रू ड्राइवर। दिस इज अ टेस्टर। इसके अंदर में बेटा एक बल्ब होता है, इसके अंदर में बल्ब है और यहाँ पे एक मेटालिक पिन होता है, यहाँ पे मेटालिक पिन है और बाकी पूरा कंडक्टर है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ दिस थिंग वर्क्स। हमें कैसे पता चलेगा? माई टेस्टर इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हम, दिस इज द मेटालिक पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर जिसको मैं लगाता हूँ। गुड टेस्टर्स विल ऑल्सो हैव अ कवर आउट हियर ताकि आपका हाथ लग ना जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे शुरू होता है मेरा द ग्रीन कलर हैंडल, इंसुलेटर है यहाँ पे मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगाया हुआ रहता है, ठीक है। ये बल्ब 220 वोल्ट को झेल नहीं पाएगा, फट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो इसने वोल्टेज को घटा दिया और ये बल्ब यहाँ कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे एक मेटालिक नट है, दिस इज द मेटालिक नट। हमें ये चीज को प्लग के अंदर घुसा के हाथ लगाना पड़ता है। अगर इसमें करंट आ रहा है तो ये बल्ब जल जाएगा, दिस विल इल्यूमिनेट। अब ये जलता कैसे है, देखो, ये यहाँ आप हो, ठीक है, और आपने यहाँ पे हाथ लगाया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा एक सर्किट चाहिए जाने के लिए। जरा देखते हैं, यहां से करंट आया, गुजरा, इससे गुजरा, गुजर के आपके हाथ में आके जमीन में चला गया है, अर्थ हो गया है, राइट। सो यू विल सी द टेस्टर ग्लोइंग। नाउ यू कैन फूल द टेस्टर। कैसे फूल करोगे? ये सब आपको सुपरविजन में है, तो वेयर वेरी गुड रबर सैंडल्स, अच्छे अच्छे रबर सैंडल्स पहन लो। अब करंट मिट्टी में नहीं जा पाएगा। आपका टेस्टर या तो ग्लो, लाइक द चप्पल्स दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, दीज आर नॉट इलेक्ट्रिकल चप्पल्स, but still they are safe, they will not allow that much of current to go. हमारा टेस्टर फीबल ग्लो करेगा। उस वक्त अगर आपको मजा लेना है ना इलेक्ट्रिसिटी का, आप इसको घुसाओ, ऐसे लगाओ, you will see a very feeble glow। आप हाथ को कहीं भी वॉल में लगा दो। Now what you are doing, you are giving an alternate path to go। चप्पल से थोड़ी जाना है, आपने दूसरे हाथ को वॉल पे लगा दिया तो करंट इस रास्ते पे चला गया, बल्ब ग्लो कर जाएगा। या फिर आप चप्पल खोल के नंगे पांव में मिट्टी में खड़ा हो, ग्लो करेगा। ऐसे करोगे कम करेगा, ऐसे करोगे ज्यादा करेगा, ऐसे कम करेगा, ठीक है। Yeah, it has to go to the earth. The current is actually flowing through your body, but the resistance is reducing that current, so you are not getting a shock. यही अगर डायरेक्ट करंट आएगा तो तुम मर जाओगे तब तक। हाँ, ये आपके बॉडी से भी जाएगा, मेटल को टच करना पड़ेगा, इसको नहीं छूएगा तो कैसे चलेगा? That's how we get to know. अच्छा, एक क्वेश्चन, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कैसे करते हैं? Do they put like a bad conductor? No, there's a resistance मिलता है, resistance wires are available in the market, different values. This is the resistance. Here the resistance is like a small डंडा, यहाँ पे है एक छोटा सा, that itself works as the resistance. Got it? Right? तो ये है हमारा काम। इसलिए इलेक्ट्रिकल काम जब करते हैं तो there should be, in fact, like when I used to be in my industry work, the boots that I had, those are like 220 proof. You can go and just touch electricity wires like this, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, आपको शॉक भी नहीं लगेगा, ठीक है। Understood? So here we, in our chapter, we end three things. By now we know what is voltage, by now we know what is current, by now we know what is resistance, we also know resistivity. A quick look at the formulas, if you can help me. Number one, V is equal to W over what? Q. Number two, I is equal to Q over T. Number three, we will have some 11 formulas तक आएगा हाँ हमारा इस चैप्टर में। Number three,
V by I is equal to R, or from here you can say V equal to IR, or V upon R is equal to I. Number 4, rho resistance R is equal to rho L upon A. ये 4 फॉर्मूलाज हमने सीखा, इसलिए बार बार लिखता हूं ना कि अगर आप समझ जाओगे तो आपको इजी होएगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपकी हालत फट्टू होएगी। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। ओके, वी हैव सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स नाउ, लेट्स सी। ओके, वी टेक अ प्रॉब्लम, वी हैव अ कॉपर वायर, हमारे पास एक कॉपर वायर है। ओके, वी हैव अ कॉपर वायर एंड द कॉपर वायर का एक डायमीटर, ये सॉल्व कीजिए, आप खुद करने की कोशिश कीजिए। डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर इज 0.5 mm, 0.5 mm, okay, and resistivity means rho is 1.6 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। ठीक है, ये इसकी रेजिस्टिविटी है। what length, अभी हमें पूछा है that we want to make a, okay, tell me the length, what should be the length of this particular wire, मतलब इतना डायमीटर का कितना लेंथ लेना है so that you can achieve a resistance of 10 ohm. Did you understand what is the question? कॉपर का एक वायर दिया हुआ है, एक रील ऐसे, जहां डायमीटर ऑफ द कॉपर वायर इज 0.5 mm एंड यू गॉट अ रील ऑफ इट। उससे कितना लंबा आप कॉपर वायर खींचोगे ताकि जो रिजल्टेंट वायर आपको होगा, आपको एक ऐसा वायर आ जाएगा, रील, ये यहाँ पे रील है पूरा, यहां से खींच के इतना खींचा, हमें चाहिए कि यहां कट करेंगे और इसका रेजिस्टेंस आना चाहिए 10 ओम। तो ये लंबाई कितना होना चाहिए, ये आपको पूछा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, 0.5। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये सब mm पे है। तो ये तो सीबीएसई का पिल्लू सा सवाल। R इज इक्वल टू क्या था, रो L अपॉन ए, रो दिया हुआ है, R दिया हुआ है, A दिया हुआ है, बस L निकालना है। वाह रे वाह सीबीएसई, क्या क्वेश्चन। I got full marks in physics. Are you doing physics? You are doing mathematics. The only physics that you will be doing here is, ये जो A जब कैलकुलेट करोगे ना, तो भाई साहब इस mm को मीटर में कर लेना। And do you know how to convert it to meter? mm को मीटर करोगे तो 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, मिली हटा दो, मीटर हो गया। लेकिन ये डायमीटर है, एरिया निकालोगे तो इसका बाई 2 होता है। अच्छा, you should know a easy formula. Area in terms of radius is pi r square. Area in terms of diameter is pi d square by 4. एक ही चीज है ना। d square by 4 क्या है? What is radius? d by 2. तो r square क्या हो गया? d square by 4. हाँ, तुम्हें तो दही पसंद नहीं ना, योगर्ट लिख के देने से समझ में आता है। अंग्रेज हो ना, तो योगर्ट समझ लो। एक बार में कन्वर्ट कर लेना, इसमें इतना मुश्किल क्या है। इसलिए मीटर में होगा तो कितना होगा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। थोड़ा और सुंदर कर ले, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो गया। तुम तो यार भूतनी की तरह इसी से कर रहे होगे। हाँ, समझ में आ गया था ना मुझे, इससे करो। हुआ कि नहीं ये प्रॉब्लम? अरे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम करना है। क्या इतना कर लोगे? चलो इसे घर में कर लेना, ठीक है। हाँ, अगला चीज पढ़ाना है। नहीं कुछ इंटरेस्टिंग है। 5 इंटू 5 इज 25, माइनस 4 का होल स्क्वायर करो, माइनस 8 हो जाएगा। ए बाबा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर। हाँ, तो 5 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 5 स्क्वायर हुआ ना। 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज 10 टू द पावर माइनस 8। x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज x टू द पावर m प्लस n। गोली मारो, बचपन क्लासेस में यही हालत होगा। चलो
आइए एक 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 इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं जो कि आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में आते हैं और प्री बोर्ड में आते हैं, उसको पढ़िए पहले, ठीक है। दीज ऑल यू कैन डू। लेट्स से pay attention out here now, okay? Let's say I have got a wire, I have a wire whose length is equal to L, right? And whose area is equal to A, and this is made up of some element, किसी भी एक एलिमेंट से बना हुआ है जिसकी रेजिस्टिविटी है रो। समझ में आया, राइट? हम दूसरे केस में क्या करते हैं, दूसरे केस में हम लेंथ को डबल कर देते हैं। अब हमारा लेंथ है 2L, हमारा बात आया हाउ डज द रेजिस्टेंस गेट इंपैक्टेड, राइट? लेट अस सी दिस क्वेश्चन कम्स फॉर केस नंबर 1, हाउ विल यू से व्हाट इज द रेजिस्टेंस? R is equal to rho L upon A, ठीक है, राइट? एंड फॉर द नेक्स्ट केस R dash will be equal to rho ही रहेगा, सेम एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है ना, और इसका L कितना है? 2L है अपॉन A। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 rho L by A is equal to 2R लिख सकता हूं? Means if you double the length, the resistance gets doubled. Have you understood this or not? In this case, what is the resistance? Rho L by A, इसका L कितना है? 2L है ना, तो 2 को बाहर ले गया, फिर rho L by A, ये वाला क्वांटिटी क्या है? This quantity is this quantity ना, R, so 2R. That means if I have a 5 centimeter wire and the resistance is R, if you make the wire without compromising on the diameter, mind you, आटा की तरह नहीं, अगर आप if you take 10 सेंटीमीटर का वायर लोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R। सो आपके ईयरफोन्स की एक लेंथ है, उस लेंथ को अगर आप डबल कर दोगे, सेम मोटापा और सेम थिकनेस, आपकी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, आपको जो क्लैरिटी ऑफ साउंड है वो घट जाएगा। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज, डबल द रेजिस्टेंस, डबल द लेंथ, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब एक और देखते हैं। लेट्स से इन आवर नेक्स्ट केस व्हाट वी डू, इन आवर नेक्स्ट केस we say maintain the same length, and in this case say our diameter was equal to D, and here we make a new diameter which is equal to 2D, double diameter लेते हैं, diameter को double करते हैं। So if you double the diameter, जब diameter D था तो एरिया क्या था? पाई D square by 4। अगर हमने diameter को double किया तो एरिया क्या हो गया? पाई 2D square by 4, which is equal to pi 2D means कितना हो गया? 4D square। तो 4 को यहाँ लिखा, D square को यहाँ लिखा, और 4 which is nothing but 4 times of area. Do you get the thing? If you double the diameter, the area becomes 4 times, not 2 times, 4 times. That means in this case our area is equal to how much? 4A. Have you understood? Anyone who has not understood can ask me. Okay, you want to see it once again? यहाँ पे करके दिखाते हैं, आ जाओ बच्चा। If the diameter is equal to D, then the area is pi D square by 4. Do you understand? If the diameter is equal to 2D, then the new area is equal to pi 2D square by 4, which is equal to pi 4D square by 4, which is equal to 4 pi D square by 4, which is equal to 4 times of A, because pi D square by 4 is nothing but A. Have you understood? यही तो वही कर दी ना बेवकूफी वाली बात। काटने से ये रिलेशन आएगा क्या? काट के क्या मिलने वाला है? हम तो ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि अगर आप डायमीटर को डबल करते हैं तो एरिया 4 टाइम्स हो जाता है। समझ में आया? आ जाओ, अब हम फिर से रेजिस्टेंस देखते हैं। इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो L अपॉन A। एग्रीड? फाइन। इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R डैश, रो ही रहेगा, L और यहाँ पे 4A हो गया, which is equal to 1/4 of rho L upon A, which is equal to 1/4 times of R. This is a very, very important finding. If the
area, if the diameter is doubled, the resistance becomes 1/4 of the original resistance. So can we write this in one statement before you guys get fed up? Number one, if length is doubled, ये याद रखिए, हाँ ये ट्रू और फॉल्स सब में आएगा, doubled resistance gets doubled. ठीक है. 2, if dia is doubled, resistance becomes 1/4 of original value. समझ में आया? अब यहां से एक सवाल आता है, मेरे पास दो वायर नहीं है, एक ही वायर है और मुझे उस एक ही वायर का रेजिस्टेंस कम करना है, तो मैं क्या करूंगा? उस वायर को सर ऐसे फोल्ड कर दीजिए ताकि वो मोटा बन जाए. अच्छा, वो समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यहां दिखाता हूं, चलो इधर देखते हैं. वी वांट टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस. सर हाउ विल यू रिड्यूस द रेजिस्टेंस? ऐसा एक वायर है ना, इसके साथ एक और स्ट्रैंड लगा दो ऐसे, तो एरिया डबल हो गया ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस 1/4 हो गया आपका. दो टाइप के वायर नहीं है मेरे पास एक ही वायर है लेकिन रील है पूरा, तो मैंने जितना वायर लिया उसी को काट के एक और लगा दिया, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया. कितना कम हो गया? 1/4 हो गया. अगर इस वायर का रेजिस्टेंस R था, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1/4 ऑफ R हो गया. और अगर मुझे रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो मैं उसी वायर को लूंगा और एक और कट पीस लाके यहां ज्वाइन करके और लंबा कर दूंगा. अब रेजिस्टेंस डबल हो गया. समझ में आई? चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं और देखते हैं ये आप कर पाते हो कि नहीं. ये समझ में आया? सो लेट्स टेक अ 6 ओम रेजिस्टेंस. आपके पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है. राइट डाउन R इज इक्वल टू 6 ओम. राइट, क्वेश्चन में है R इज इक्वल टू 6 ओम्स. 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है. ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग. ये कुछ वायर था, इस वायर को आपने फोल्ड करके डबल कर दिया, डबल्ड अप बाय फोल्डिंग. ठीक है. कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. इसमें कैच है लेकिन प्रॉब्लम में, हाँ, हमारे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 6 ओम. हमने इसको डबल करके इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश की है. फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. मटेरियल रिमेन्स द सेम. हु विल टेल मी व्हाट इज द कैच इन दिस प्रॉब्लम? Resistance is 6 ohm and यू हैव जस्ट फोल्डेड द वायर. मोटा कर दिया अभी वायर को. if you मोटा करते हैं that means there are no space. अरे मेरे को इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दो. यू वॉट एवर फॉर्मुलाज यू नो, यू कैलकुलेट ना. फोल्डेड बेटा, वन टाइम फोल्डेड. फिगर दिख रहा है ना, इसका हाफ ही दिख रहा है ना. चलो अच्छा, उसमें प्रॉब्लम है क्या? अच्छा 2 सेंटीमीटर ज्यादा बनाया था, ले अब हाफ दिख रहा है तेरे को. हाँ, और भी कुछ करूं क्या? खुला हुआ वायर का रेजिस्टेंस है 6 ओम. फोल्ड करने के बाद क्यों? सेम वायर को फोल्ड किया. हाँ. कितना हुआ बेटू? कितना निकला? हाउ मच? 1.5 इज द राइट आंसर. क्यों सेम होएगा? इतना देर ये सब क्या पढ़ा? दिस इज द वायर. अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो क्या हो रहा है? इसका लेंथ हाफ हो गया है और क्रॉस सेक्शन डबल नहीं हो गया है. बात कर रहे हो. लेट द लेंथ ऑफ द वायर बी L. गॉट इट? R is equal to how much? Rho L upon A. And this rho is how much? This R is say 6. 6 is equal to rho L upon A. Do you get it? What is the new resistance? R. See beta, एक mistake हो गया है. This is the rod
and let's not go by diameter. Let's say its cross sectional area is A. If I bend it again, if you bend it again, then the cross sectional area is straight away 2A. So here your cross sectional area is R dash is equal to rho L by 2 divided by 2A. So this is 2A. So this becomes 1/4, which is equal to 1/4 into rho L by A, and this value is 6. 6 is equal to 1.5 ohms. ठीक है. We'll stop here today. अभी भी रेजिस्टेंस में दो चीज और पढ़ने हैं, and then we will be going to power. Almost you have come to halfway of the chapter. आपने लेंथ हाफ में काट दिया, एरिया हाफ में नहीं काटा बेटा, जो वायर था ना उसको फोल्ड कर दिया तो लेंथ हाफ हो गया और क्रॉस सेक्शनल एरिया दुगना हो गया. डायमीटर देखने की जरूरत नहीं है ना इसमें. हाँ डायमीटर क्यों देखोगे? मेरा ये हाथ, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेट्स से इट इज यूनिफॉर्म, इसको फोल्ड कर देंगे तो डबल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ना, बस वही. ठीक है. सो विल टेक ए ब्रेक टुडे एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स. और इसके बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं रेजिस्टिविटी के, थोड़े से और प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन विल गो टू पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, विल एंड रेजिस्टेंस एंड देन गो टू पावर. इसके बाद पावर आएगा, पावर के बाद एनर्जी आएगा, फिर किलोवाट आवर आएगा. बहुत हाफ वे आ चुके हैं चैप्टर में. और आपने ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. कौन सा? ये यहाँ तक नहीं आया था, इससे पहले तक.